Today we are going to introduce rank multiplicity theorem. We will also see here how we apply rank multiplicity theorem on the problem. तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन भी देखेंगे rank multiplicity theorem का. Before that we have to know what is rank multiplicity theorem. So, rank multiplicity theorem says the geometric multiplicity of a eigenvalue cannot exceed its algebraic multiplicity. So, the theorem say GM cannot exceed AM, its AM. That is GM of a characteristic roots cannot exceed its AM. So GM cannot exceed AM. तो इसका प्रूफ हम बाद में कराएंगे. First I am showing you the beauty of the theorem. So we have a problem, okay, we can say it application. एक क्वेश्चन कहता है to find eigenvalue of matrix A where A equals to this one. We are finding the eigenvalue with the help of the rank multiplicity theorem. We are not using the characteristic equation to finding the characteristic roots. We are just using the rank multiplicity theorem here. So first हम देखेंगे मैट्रिक्स को is it singular or not, but here in this case the given matrix is singular. So step wise लिखा रहा हूँ, इसी को एल्गोरिदम बोल देते हैं हम. ओके, आपको ऐसे ट्रीट करना है अगर इस टाइप का मैट्रिक्स दिखे तो फर्स्ट स्टेप, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर. सिंगुलर कैसे पता किया? क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड रो या सेकेंड रो थर्ड रो या थर्ड रो फर्स्ट रो आर द डिपेंडेंट, वो डिपेंड कर रहा है. यानी फर्स्ट रो में अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेकेंड रो बन रहा है, ओके, या फर्स्ट रो में अगर थर्ड 3 से मल्टीप्लाई करो तो थर्ड बन रहा है. इस तरीके से वी कैन सी हियर द रोज आर डिपेंडेंट या स्केलर मल्टीपल है. तो मैं कह सकता हूँ इट मस्ट बी सिंगुलर, ओके, यानी डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा. सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ सिंस डिटर्मिनेंट इज 0, determinant is nothing but the product of eigenvalues. So if determinant of A is 0, the matrix A must have at least one eigenvalue is 0. So given matrix is singular, it means determinant is 0, then it implies at least one eigenvalue is 0. Say lambda equals to 0, lambda 1 equals to 0. एक आइगन वैल्यू मिला हमें. सो स्टेप सेकेंड में हमें चेक करना है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. ओके, GM ऑफ lambda equals to 0. Of course lambda 1 is equal to 0, तो lambda 1 equals to 0 के लिए हमें geometric multiplicity find out करना है. So here we know the formula for finding the geometric multiplicity. So GM of lambda 1 is equal to order of matrix minus rank of A minus lambda I. So order is 3. So GM of lambda 1 is equal to 3 minus rank of A minus lambda 1 identity matrix.
जहाँ पे हमने एम जी एम करवा रखा है, उस लेक्चर में जाके आप देख सकते हो। सो 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा 1 इज 0, 0 इंटू आई, 0 इंटू आई इज 0 आ जाएगा ये। दिस इज 3 माइनस रैंक ऑफ ए। अब रैंक ऑफ ए तो आप इजीली देख सकते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट 0 हो जाएगा पूरा रो, एंड सेकंड माइनस 2 इंटू आर वन, R2 माइनस 2 इंटू R1 करेंगे तो ये पूरा 0, R3 माइनस 3 इंटू R1 करेंगे ये पूरा 0, अल्टीमेटली रैंक इसका 1 आएगा। सो GM इज इक्वल टू 3 माइनस 1 is equal to 2. So GM of lambda 1 equals to 2. So step third, अब हम यूज करेंगे इस थियरम को, रैंक मल्टीप्लिसिटी थियरम को। GM कैन नॉट एक्सीड AM, ओके, बट GM क्या रखा है, लैम्डा बराबर 0 का GM क्या है, 2 है। So 2 cannot exceed AM of course this is for the lambda 1 equals to 0, because हमारे पास एक नॉन आइगन वैल्यू जो है केवल लैम्डा 1 है, which is 0 है। So GM cannot exceed AM, so मैंने देखा यहाँ पे GM of 0 cannot exceed AM of 0, so क्योंकि हम आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर 0 के लिए देख रहे हैं। सो 2 कैन नॉट एक्सीड AM। सो यहाँ से हम कह सकते हैं 0 आइगन वैल्यूज कम्स एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि AM जो है 2 से तो बड़ा ही है, और किसका, लैम्डा 1 बराबर 0 का। सो AM इज एटलीस्ट 2, सो AM ऑफ lambda 1 equals to 0 is at least 2, therefore 0 eigenvalue comes at least 2 times, so therefore यहाँ से मैं कह सकता हूँ lambda 1 equals to 0 आया है, एंड दूसरा आइगन वैल्यू भी lambda 2 से lambda 2 भी 0 ही होगा, हमने लैम्डा 2 को 0 कर दिया। नाउ व्हाट इज लैम्डा 3, ठीक, क्लियर है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। हम इसी कॉन्सेप्ट को, इसी एल्गोरिथम को बिगर प्रॉब्लम में भी लगा सकते हैं, बिगर मैट्रिसेस में भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 की लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू आई, 2 आइगन वैल्यूज हमें मिले विद द हेल्प ऑफ द रैंक मल्टीप्लिसिटी थियरम। नाउ स्टेप फोर्थ, वी नो ऑलरेडी lambda 1 equals to 0, lambda 2 equals to 0, then we are finding the lambda 3, तो we are just find trace, okay, बहुत easy है trace को भी निकालना। Trace of A, trace of A is equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to sum of diagonal elements, okay, 1 2 3, so sum of diagonal elements and lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 की वैल्यू जो है, लैम्डा 1 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, लैम्डा 2 इज 0, लैम्डा 3 इज लैम्डा 3, सो सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट आर 1 प्लस 2 प्लस 3, सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ लैम्डा 3 इक्वल्स टू 6, so therefore we have solution, lambda value are 0 0 and 6 are the required solution। तो इस तरीके से हम रैंक मल्टीप्लिसिटी थियरम का यूज करके
आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ये एल्गोरिदम आ चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कितना फास्ट हम करते हैं। ओके, फाइंड द ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए इज गिवन बाय दिस वन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लगा के करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है ये। सो मेरा सजेशन यही है कि जस्ट यूज द रैंक मल्टीप्लिसिटी थियरम। सो जस्ट हमने देखा, बस करना कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट जीरो है, बहुत इजी है, डिटर्मिनेंट जीरो है। सो इजीली देख सकते हो, दो रो डिपेंडेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, इट इम्प्लाई एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू इज जीरो। से बोल देते भाई लैम्डा वन मेरा जीरो है, हम इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जीएम फाइंड आउट करेंगे। सो जीएम ऑफ lambda 1, so we know the gm is equal to order 4 minus rank of a minus lambda 1 I, but 0 है, 4 माइनस रैंक ऑफ ए कर देता हूँ। रैंक इस टाइप की जब भी मैट्रिक्स गिवन होगी सीधे रैंक आपका केवल 1 ही आएगा, आप डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये तीनों रो जीरो हो जाएंगे। ओके, जब रो ऑपरेशन यूज करेंगे देन एक ही रो इंडिपेंडेंट रहेगा, एक ही रो नॉन जीरो होगा। सो वन रो इज नॉन जीरो, देन इट्स रैंक इज ओनली 1। सो gm is 3, so by the rank multiplicity theorem gm cannot exceed am, it means the 3 cannot exceed am, so am of lambda 1 is at least 3, कम से कम लैम्डा बराबर 0 का जो am होगा वो 3 होगा। सो आप ये तो डिक्लेयर कर ही सकते हैं, लैम्डा 1 बराबर 0, लैम्डा 2 बराबर 0, लैम्डा 3 बराबर 0 के 3 आइगन वैल्यू मिल गई हमारे। दो एक आइगन वैल्यू हमने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट देख के बता दिया, दो आइगन वैल्यू मिली हमें जीएम कैन नॉट एक्सीड एएम से, तो थर्ड हमारा बाय यूजिंग द ट्रेस। सो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 lambda 3 plus lambda 4 is equal to sum of diagonal elements, but sum of diagonal elements is 0। ध्यान से देखिए, sum of diagonal elements 0, so lambda 4 equals to again 0। तो this matrix has all 0 eigenvalues, so all eigenvalues are 0 and its rank is 1। You can see here this matrix is nilpotent matrix। We already discussed about the nilpotent matrix, हमने इस टाइप की मैट्रिक्स को कराया है nilpotent matrix में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस केस में मैट्रिक्स की रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल आइगन वैल्यूज आर 0 बट इट्स रैंक इज 1। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है कि सभी आइगन वैल्यू 0 होने से मैट्रिक्स की रैंक भी 0 हो जाए। ओके, सो ये ध्यान देंगे आप, क्योंकि हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये सब भी है, ठीक है। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप ऑल आइगन वैल्यूज 0 दिखा सकते हो, बट जो रैंक होगी वो नॉन जीरो हो सकती है, ठीक है, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो आइगन वैल्यू 0 होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके मैट्रिक्स की रैंक भी 0 ही हो। तो वी हैव द काउंटर एग्जांपल,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। बट अगर आपके पास एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स की रैंक जीरो नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है आपको। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। If A is a square matrix of order 100 and rank of A is 49, then the number of zero eigenvalues of A are number A, B, C, D. 49, at most 49, at most 50, at most 51. Here the finding the number of zero eigenvalues, ध्यान से देखिए, finding the number of zero eigenvalue. So suppose इसको solve कर लेते हैं. Suppose lambda equals to 0, okay, then we are finding the number of zero eigenvalues कितने होंगे, यानी am of 0. Before finding the am of 0 we have to use gm. So finding gm of 0 equals to 100 minus rank of a minus lambda I, यानी rank of a minus 0, it means rank of a, which is 100 minus rank of a is given here 49. Okay, so gm is what? 51. We know the rank multiplicity theorem. Rank multiplicity theorem say gm cannot exceed am. gm cannot exceed am. So gm of 0 is 51, cannot exceed am of 0. Number of 0 eigenvalue are at least 51, but at least 51 तो कहीं नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ at least 51. So our answer is C. अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार, ओके, इसी क्वेश्चन में पूछता है, सेम प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ओके, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए. ऑप्शन से दे दिया ए बी सी डी, एग्जैक्टली 49, एट मोस्ट 49, एटलीस्ट 51, एट मोस्ट 51. नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू, अब ध्यान से देखिए, number of zero eigenvalues are at least 51. कम से कम 51 तो होंगे ही होंगे. अगर नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज 51 हो गए, एटलीस्ट 51 हो गए, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कितने हो सकते हैं? 51 तो नहीं हो सकते. तो इस केस में आपका जो आंसर होगा, ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है. देन नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए विल बी एट मोस्ट 49. ओके, एक तो ये करेक्ट हुआ. दूसरा, इसको नहीं भूलना, एट मोस्ट 51, ये भी करेक्ट है इसके लिए, बिकॉज अगर एटमोस्ट 41 है तो एटमोस्ट 51 भी होगा, और एटमोस्ट 100 आप इसके ऊपर जितने भी होंगे एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तो ये हो सकते हैं, ठीक है. 49 तक होते हैं. अगर ये भी बोल दिया तब भी ये जो रेंज है 49 वाली इसके अंदर में आ गई.
तो इसके ऊपर जितने भी हमारे एटमोस्ट होंगे वो इसके अंडर में आ जाएगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए विल बी एटमोस्ट 49 या एटमोस्ट 51। ध्यान से आप करना। ऑप्शन इस तरीके से भी बनते हैं, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ये क्वेश्चन आपको करना है खुद ही, ठीक है। सो क्वेश्चन सिंपल है। सो सपोज a इक्वल्स टू a I j 1000 cross 1000 such that a I j is equal to 1 for all I j. Then find set of all eigenvalues of a. तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाएगा। इजीली आप देख के ही बता सकते हो, आपके पास अगर AMGM का कॉन्सेप्ट है तो। सो मैं लास्ट वाली प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूँगा, जो लास्ट लेक्चर में दिया था। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो इस टाइप के, ज़रूरी नहीं है आप ऑलवेज प्रूफ के थ्रू ही करो, तो आप डिस्कार्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हायर मैथमेटिक्स में, तो आप डिस्कार्ट मेथड यानी ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो मैं इसमें ऑप्शन के थ्रू ही करूँगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ क्या है। आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए जो गिवन है -1 0 एंड 1 है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग दिस आइगन वैल्यू वी हैव सम आइगन वेक्टर्स जो गिवन है, तो वो मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है इसमें। सो यहाँ से मैं देख सकता हूँ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज -1 + 0 + 1 = 0 आ रहा है। तो पहले तो मैं ये देखूंगा किस मैट्रिक्स का ट्रेस 0 नहीं आ रहा है, तो मैं उसको हटा दूंगा, वो नहीं हो सकता। यानी इसका ट्रेस 0 है, इसका 0 है, इसका ट्रेस 0 नहीं आ रहा है। ट्रेस इज ऑल्सो द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। सो सी तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर, डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये मिला। तो ए का डिटर्मिनेंट भी हम बता सकते हैं कि क्या आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी अगेन 0, एंड ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ऑफ 6a, 6 स्केलर है। सो स्केलर अगर बाहर आ जाएगा, हम कैसे लिखते हैं 6³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो दिस इज अगेन 0। तो जो 6a के इक्वल में देखा है हमने, तो उसकी डिटर्मिनेंट भी 0 आ रही है। लेकिन अब b देखो, इसका डिटर्मिनेंट ये 0 है, ये पूरा रो 0 है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, हम चेक कर सकते हैं। इसका भी 0 आ रहा है, ये भी हो सकता है। डी का डिटर्मिनेंट नॉन 0 आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। अब 3/3 का मैट्रिक्स है ये, तो आप इजीली चेक कर सकते हो डिटर्मिनेंट नॉन 0। डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ऑप्शन डी का डिटर्मिनेंट यहाँ पे नॉन 0 आ रहा है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो अब आए मेरे पास ए और बी, सी एंड डी आर डिस्कार्डेड। नाउ फॉर नेक्स्ट ए और बी। ए और बी पॉसिबल है, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, आइगन वैल्यू -1 0 एंड 1 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, क्लियर गिवन है। तो 6a के आइगन वैल्यू क्या होंगे, जस्ट -6 0 एंड 6 आर द आइगन वैल्यू ऑफ 6a होने चाहिए। बट हियर 6a के आइगन वैल्यू, बट हियर b में जो ऑप्शन b में दिया है आइगन वैल्यू 1 और -1 गिवन है, जबकि होने क्या चाहिए, एक -6 0 और 6 होने चाहिए।
सो बी इज डिस्कार्डेड। तो बचा ए, तो आंसर ए ही होगा, ठीक है। सो द आवर करेक्ट आंसर इज ए। यूजिंग डिस्कार्ड मेथड हमने ये शो कर दिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से देयर इज आंसर ऑप्शन ए। ठीक, तो इस तरीके से भी आप जाएंगे, जहाँ पे आपको इजीएस्ट वे लगेगा आप उसी की तरफ अप्रोच करेंगे और इजी वे के थ्रू ही आपको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट में हम इसका प्रूफ करेंगे रैंक मल्टीप्लिसिटी थियरम का और कुछ प्रॉब्लम, देन उसके बाद हम कैले हैमिल्टन थियरम करेंगे।